Assalamu alaikum. We have 17th lecture for Business Finance Mgt232. We will be looking at capital budgeting and capital budgeting techniques. In the last lecture we studied about cost of capital, and we will be using that cost of capital in these capital budgeting techniques. Now let's look at few of the things we have studied in our last lecture, that is cost of capital. I have a brief overview. In last lecture we studied about the creation of the value, that how the value is being created. We are not just looking at the financial point of view of the company, we are also looking at few or more things, that is how the company has been created, what is the performance of the company in the industry, what is the competitive edge, what is the organizational capability of the company. We do consider all these things that directly affect the image of the company, the position of the company, and then the performance of the company as well. So considering all these things, the major decisions of the company has been taken, and these decisions also directly affect the finances of the company. So wherever the company stand, whatever the company have the competitive edge or the competitive advantage, that competitive edge or competitive advantage creation needs some finances as well, and that directly affects the financial decisions of the company. So and that would require more investment, more financing. And then getting the required rate, finding out the required rate of return on that investment and financing is the major part of your finance. And this is what we have studied in our last lecture, that whatever the performance or whatever the things there are in the market, whatever the image of the company in the market, that directly affects the decisions of the company. Those decisions do need financing and investment. That investment relates to the financing decisions, and then finding out the cost of capital or the required rate of return on that certain investment or the finances. So then we found out that what is the cost of capital? The cost of capital is the required rate of return on the investment or the type of financing company is doing. So whatever you are offering your investor is your cost of capital or the required rate of return. There are three basic components of cost of capital. The first one is your cost of debt. Cost of debt is your required rate of return on you are offering to the lenders of the company. That is, you are offering to your lenders, your creditors, those who have given you loan, your bank, or you can also say your bondholders, who are the creditors to whom you are going to pay the interest payments. So whatever you are offering to your creditors is your cost of debt, the required rate of return on your debt. Then we talked about another component, that is cost of preferred stock. That means whatever you are offering to your preferred stockholders, that is the required rate of return on the investment of the preferred stockholders. So we have a certain amount of, or certain percentage of cost of certain percentage of investors in the preferred stockholders. So we have preferred stockholders, and the required rate of return on the investment of those preferred stockholders is the cost of preferred stock. We found out the cost of preferred stock through RP is equals to DP over VP. This was the formula being used for cost of preferred stock. Then we talked about cost of common equity, which is the third component of your cost of capital. Cost of common equity is the required rate of return you are offering to your common shareholder, who are the owner of the company, residual owners of the company. So whatever you are offering to your financiers, your investors, or your you can say your owners of the company, is what is cost of common equity or the cost of common stock. That is the required rate of return. So these three components are the ones when we find out the value of these three components through different formula. For example, for common stock equity we use three different models. The first one was your constant growth model, the second one was your capital asset pricing model, and then the last one was your cost of debt plus risk premium. And we found out that the answer for all these three models is same as 13%. But normally it is not equal, it is around about on average it is round about equal.
but not exactly equal. So we use those values and the weight of each component, that means the percentage investment being done through your debt holders, through your stockholders, specifically preferred and common stockholders. Then we found out that the weight इतना है, इतनी percentage 35% अगर debt holders ने की हुई है, 15% preferred stockholders की तरफ से है, and remaining 50% is from your common stockholders. That means कि 3 different components have 3 different percentage of investment being done in the company. That is the weight of your cost of debt, cost of equity, and your cost of common stock. Then we add that required rate of return we have already found through the models. उन models की required rate of return और आपकी जो cost of weight from different sources आते हैं, उन सबको आपस में multiply करते हैं and average find out करते हैं. Then we find out the weighted average cost of capital, which is actually telling you about the weighted average cost of individual component of cost of capital. तो हर individual cost of capital के component की जो भी हमारे पास values आती हैं, required rate of return और उनकी weighted average find out की जाए, then we find out the WACC, that is your cost of capital. WACC is actually the kind of a formula, or you can say it is one of the method of finding out the cost of capital of a firm. Then we talked about limitations of the cost of capital, that is WACC. WACC की first one was flotation cost. Flotation cost ही basically हम consider करते हैं इसकी one of the limitations, क्योंकि flotation cost consider करना ज़रूरी हो जाती है इसके अंदर, वो क्योंकि वो भी एक तरह की cost है. You are investing that amount into your issuance of shares. For example, वो legal requirement जो कि आपके bonds issue करने या shares issue करने के ऊपर आएगी, उस पे जो cost incur होती है, वो incur जो कि वो cost जो कि for example if you are doing a marketing for issuing your stock to the general public, या आप अपने stocks की जो price होती है, आपने अपने एक piece of paper of contract बनाया है for bond and for stock, तो उस पे जो cost incur हुई है, all these costs are included into your flotation cost. तो flotation cost को आप original जो par value है उसमें से minus करके फिर देखते हो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है. तो फ्लोटेशन कॉस्ट का भी WACC में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, बट वी डिड नॉट फाइंड इट आउट थ्रू अ होल प्रोसेस ऑफ WACC, बस इट्स जस्ट अ लिमिटेशन ऑफ WACC. Well, that was all about your last lecture. Let's look at today's lecture, that is about capital budgeting. Let's start with capital budgeting and estimating cash flows and look at a few of the topics we are going to cover in this chapter. The first thing is the capital budgeting process. We are going to look at the capital budgeting process, that how do we do the capital budgeting and find out certain techniques for this capital budgeting of the projects. Then we another thing we are going to study is classification of investment project proposals. That means we are going to classify what are different kinds of investment projects on which we can use the capital budgeting techniques, or where the capital budgeting process is needed. So different projects को देख के उन पे capital budgeting techniques use की जाएंगी. Then we found we'll be studying about capital budgeting techniques. There are 6 main capital budgeting techniques. Payback period, discounted payback period, net present value, we have internal rate of return, then we have modified internal rate of return, and in the last we have profitability index. So let's look at the first thing, that is what is capital budgeting. What is basically capital budgeting is? एक चीज होती है कैपिटल बजट. कैपिटल बजट इज बेसिकली फोरकास्टिंग योर बजट. दैट मीन्स आप उसमें कैश बजट उसको कहते हो या कैपिटल बजट कहते हो. दैट मीन्स यू आर फोरकास्टिंग योर कैश के कमिंग अप ईयर्स के अंदर व्हाट इज योर इनिशियल आउटले, व्हाट आर द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज एंड व्हाट विल बी योर सर्टेन अदर कैश फ्लोज. अब इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा विल बी मूविंग ऑन टू कैपिटल बजटिंग की, उसमें जो हमारे सर्टेन लेवल ऑफ फोरकास्टिंग की जाती है वो किस तरीके से की जाती है, और फिर उस फोरकास्टिंग को यूज करते हुए हम किस तरीके से कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं. अब कैपिटल बजटिंग में तो हमने कह दिया कि डिफरेंट 3 पोर्शंस है कि फर्स्ट थिंग इज योर इनिशियल आउटले ऑफ कैश फ्लो, देन योर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, एंड द लास्ट वन इज योर टर्मिनल कैश फ्लोज. इन डिफरेंट कैश फ्लोज को हम लोग फाइंड आउट करते हैं यूजिंग फोरकास्टिंग. दिस इज योर कैपिटल बजट. ये हम कैपिटल बजटिंग में फोरकास्टिंग करते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल बजटिंग, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज दोज कैश फ्लोज of different projects और different कंपनी के different income की cash flows भी हो सकते हैं. उनको use करके we will be finding out their present value और their percentage return कि कितना percentage return इस cash flow के ऊपर मिलेगा. तो हम different projects के अंदर investment करें, क्या है इस project में initial investment और कितनी forecasting से cash flows find out किए. forecasting की cash flows को अगर discount किया जाए तो आज हमारे पास क्या value बनती है, क्या whether it is a good investment or not. तो ये हमारी basically capital
बजटिंग हेल्प कर रही होती है. सो व्हाट इज द कैपिटल बजटिंग? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, देन एनालाइजिंग एंड देन सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स whose returns are expected to extend beyond 1 year. That means कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को evaluate करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए होते हैं. तो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड वाले प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करके उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं थ्रू योर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, एंड देन वी फाइंड आउट दैट विच प्रोजेक्ट इज बेटर एंड विच इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज टू बी रिजेक्टेड. सो उसमें जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो तो कुछ सर्टेन टेक्निक्स होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए, जो कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक से ही होता है आपके सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस. उसके बाद एनालिसिस करने के बाद कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड. उससे ये अंदाजा हो जाता है कि क्या वेदर वी आर गोइंग टू गेट द रिटर्न वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन दिस इन्वेस्टमेंट और नॉट. तो मेरे पास एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है कि आई हैव टू बिल्ड अ डैम, और वो डैम बनाने के लिए उसमें मेरी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगी, और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर वो डैम कंप्लीट नहीं, उसमें 1.5 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं. वो जो मेरा टाइम पीरियड है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का, दैट इंश्योर्स कि जी आपको इसके ऊपर कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगानी है. प्लस फिर हम उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उसके फोरकास्टेड कैश फ्लोज करते हैं कि कैश फ्लोज को फोरकास्ट किया गया. उसके बाद उसमें हम फाइंड आउट ये करते हैं कि हम देखते हैं कि इसके ऊपर अगर डिफरेंट टेक्निक्स लगाई जाए और उसको डिस्काउंट किया जाए तो क्या वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड और नॉट. तो क्या मैं जो इन्वेस्टमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म करने जा रही हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या मुझे उसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इतना परसेंटेज रिटर्न आएगा, क्या वाकई इतना परसेंटेज रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा. फोरकास्ट करके देखा जाता है कि कितने कैश फ्लोज आएंगे, और हर कैश फ्लो को री इन्वेस्ट भी अगर किया जाए तो री इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमारे पास कितने परसेंटेज रिटर्न आ रहा होगा. वी यूज डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस एनालिसिस एंड वी कॉल दोज टेक्निक्स एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. नाउ लेट्स लुक एट द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. The first thing is to generate investment proposal consistent with the firm's strategic objective. Now this is very important. अगर firm के एक strategic certain objective है और define किया गया है कि this is your strategic objectives या this is your strategic vision or mission, और उसके बाद ये decide किया कि for example कंपनी का basic vision या mission ये है कि to provide certain products, food products और food items to the customers. अब एक certain food products ही उनकी एक requirement है कि food product में ही वो अपनी सारा कुछ फूड, हाली फूड में, नॉट इन बेवरेजेस बट जस्ट फूड के अंदर उनकी सारी इन्वेस्टमेंट एंड फूड उनका जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है या आपकी मार्केट है जिसके अंदर वो कम्पीट कर रहे हैं. नाउ अगर हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट उठा के ले आते हैं जिसके अंदर फूड के साथ साथ यू हैव टू लुक एट डिफरेंट बेवरेजेस, कि आप उनको जूसेस भी प्रोवाइड कर रहे हो, उनको डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स, डिफरेंट किस्म की इस तरह की बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, ड्रिंकिंग बेवरेजेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो इसका मतलब है फूड एंड बेवरेज में चले गए हो. तो फूड एंड बेवरेज वाला जो प्रोजेक्ट है, क्या इट इज लिंक्ड और इन लाइन विद योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ ही अगर इन लाइन नहीं है तो वी विल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट दैट प्रोजेक्ट. पहले ही वो इनिशिएट होने से पहले ही प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है. बट इफ यू लुक एट अनदर प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक न्यू फूड आइटम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ऐसा फूड आइटम है जिसमें वो सर्टन टेस्ट जो है वो अभी लोगों का डेवलप नहीं हुआ हुआ. फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टार्टिंग सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जिसके अंदर चीज इंक्लूडेड है, और चीज जो है वो अभी लोगों का इतना ज्यादा कुछ हद तक टेस्ट डेवलप हुआ है बट दे डोंट हैव एनी सर्टेन प्रोडक्ट फॉर दैट आइटम. तो किसी भी एक सर्टेन आइटम के अंदर हम लोग चीज की इनिशिएशन लेके और कहते हैं कि जी हमने एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, दिस इज योर ह्यूज अनदर प्रोजेक्ट. अब ये प्रोडक्ट आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ जाता है. दैट मीन्स कि कंपनी के उस सर्टेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के साथ जो भी प्रोजेक्ट जाता है, द चांसेस ऑफ एक्सेप्टिंग दैट प्रोजेक्ट एट द हायर लेवल, जो कि प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन लेवल पर भी ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा. अगर वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया देन वी विल, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट की को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट हो गया प्रोजेक्ट, अगर हो जाता है, अगर लेट्स सपोज कि ये प्रोजेक्ट है, इसको हाँ जी इनिशिएट करना है. इनिशिएट करने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू फोरकास्ट देयर सर्टेन कैश फ्लोज. दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप. फॉर एग्जांपल हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बना लिया है, वो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है फर्म के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन लाइन एंड दैट इज बीइंग सिलेक्टेड. उसके बाद हम क्या करते हैं, वी एस्टिमेट आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. एक सर्टेन कैश फ्लोज उसके देखते हैं कि इनिशियल आउटले, टर्मिनल कैश फ्लोज क्या होंगे, इनके एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखते हैं ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के, फोरकास्ट करते हैं कि कितना, या एस्टिमेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैश फ्लोज हमारे पास आएंगे. देन वी ऑल्सो एवेल्युएट प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज. उनको एवेल्युएट किया जाता है कि कितना नंबर ऑफ
कितने परसेंटेज के साथ वो ग्रो कर रहे हैं, या कितना अमाउंट ऑफ कैश फ्लो हमें हर प्रोजेक्ट से हर ईयर में कमिंग अप ईयर्स में मिलेंगे। अगर वो हमारा एक बेहतर तरीके से है तो देन वी सिलेक्ट द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अ वैल्यू मैक्सिमाइजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। दैट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो हमने जैसे थर्ड स्टेप में कहा है कि वी आर गोइंग टू evaluate those प्रोजेक्ट्स जो हमारे इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आए हैं, तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को अवेल्युएट करेंगे। जब हम बात करते हैं अवेल्युएशन की, तो अवेल्युएशन और सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज थर्ड और फोर्थ स्टेप ऑफ दिस कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, उसमें थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में योर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अप्लाई होती हैं। तो हमारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स अप्लाई होंगी कहाँ पे, जहां पे हमने अपने प्रोजेक्ट को अवेल्युएट करके और उसको सिलेक्ट करना है। नाउ हमने प्रोजेक्ट को अवेल्युएट किया, एनालिसिस। अब जब हम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया है कि हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स लगाने के बाद एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग द रिटर्न एज वी आर एक्सपेक्टिंग और नॉट। जितना हमें इन्वेस्टमेंट, इस ह्यूज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या जितना भी एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिटर्न है या रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इस पे क्या वो बेहतर है या नहीं है। एंड वी ऑल्सो यूज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टेक्निक्स। उसके बाद अगर लेट्स सपोज वी सिलेक्ट द प्रोजेक्ट, एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में डाल दिया जाता है। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दैट प्रोजेक्ट हम उसको री एवेल्युएट करते हैं थ्रू पोस्ट ऑडिट्स। उसको पोस्ट ऑडिट किए जाते हैं तब तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोजेक्ट, तो इन बिटवीन भी उसके सब पोस्ट ऑडिट्स किए जाते हैं ताकि कुछ चेंजेस या कोई और इन्वेस्टमेंट चाहिए हो तो उसकी वैल्यूएशन की जाए। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब वो कंप्लीट हो जाता है तो भी उसकी वैल्यूएशन की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। Now let's look at the classification of different investment project proposals, that what are different kind of project proposals we consider for capital budgeting process or for capital budgeting techniques. Within the few of them are within the organization. Okay जी, the first one is your new product or expansion of existing products। यहाँ तो आप कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप करा रहे हो, जैसे मैंने अभी एक फूड एंड बेवरेज कंपनी की एग्जांपल दी थी, और यहाँ तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करवा रहे हो, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट आपने स्टार्ट करा दिया, या आप अपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ा एक्सपेंड करना चाह रहे हो, उसको एक नए तरीके से लेकर आ रहे हो, तब आपके क्योंकि इट्स अ न्यू इन्वेस्टमेंट। बिसाइड दैट अगर हम कोई न्यू प्लांट लगा रहे हैं, कहीं पे कोई न्यू प्लांट लगा रहे हैं, उसके लिए वो एक प्रोजेक्ट एक्सपेंशन, एक न्यू एक्सपेंशन आपकी कंपनी की, या आपकी कंपनी कहीं री इन्वेस्ट करना चाह रही है या और इन्वेस्टमेंट करनी चाह रही है किसी और जगह पे, फॉर एग्जांपल एक कंट्री में है दूसरे कंट्री में, या अगर लोकल बिजनेस है तो एक सिटी में है तो दूसरी, अगर लेट्स सपोज वी हैव अ प्रिंटिंग प्रेस इन वन सिटी एंड वी आर वांट टू इंस्टॉल अनदर प्रिंटिंग प्रेस इन another city, for example one is in Islamabad, the next one would be in कराची, अनदर वन विल बी इन लाहौर। तो वो जो कराची और लाहौर में, लेट्स सपोज इस्लामाबाद में है, कराची लाहौर में जब हमने डेवलप करवानी है अपनी डिफरेंट किस्म की प्रोजेक्ट्स, तो वो किस तरह आपका प्लांट करेगा, या आपकी प्रिंटिंग प्रेस, वो जो पूरी प्रिंटिंग प्रेस है वो किस तरह होगी, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगी, वेदर इट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और सारा मार्केट क्राइटेरिया को भी देख के उसमें कंसिडर किया जाता है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग, आप किसी नई बिल्डिंग को चेंज करना चाह रहे हो, पुरानी बिल्डिंग को चेंज करना चाह रहे हो, कोई नई बिल्डिंग हायर करना चाह रहे हो, या अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स, आपके पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी फॉर योर प्रोडक्ट्स, एंड इफ यू वांट टू चेंज दैट मशीनरी और इक्विपमेंट, या आप न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट किसी न्यू प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के लिए लेना चाह रहे हो, तो उसमें वो भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, जिसको आप एनालाइज कर सकते हो यूजिंग दिस कैपिटल बजटिंग टेक्निक। देन डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, तो उसके लिए मुझे पूरी रिसर्च करनी होगी, रिसर्च के लिए मुझे आई नीड फाइनेंसेस, और उस रिसर्च के बाद उसकी पूरी डेवलपमेंट है, और फिर या मैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज की बेटरमेंट के लिए कोई रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ, या कुछ भी ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं दैट इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उनमें भी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। देन एक्सप्लोरेशन के, फॉर एग्जाम्पल रिसर्च में ही हमारे आ जाते हैं कि वी वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम पेट्रोलियम कंपनीज की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम कंपनीज में आपकी डिफरेंट टीम्स बन जाती हैं। वो टीम्स जो हैं, अगर दे नो दैट दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन गेट द ऑयल, तो वो उन जगह पे पूरा एनालिसिस करना, उसको एक्सप्लोर करना, उन जगहों को देखना, उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है, फिर एक्सप्लोर करने के बाद उसमें से उस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, तो एक प्रोजेक्ट हो जाता है, और दूसरा प्रोजेक्ट आपका कौन सा हो जाता है, आपकी रिसर्च, आपकी पूरी एक्सप्लोरेशन। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स को हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक से एनालाइज करते हैं। अनदर वन इज योर अदर काइंड ऑफ एनी अदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू सेफ्टी और पोल्यूशन रिलेटेड है, और अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, या कुछ और हम लोग
काम करना चाह रहे हैं, कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं जिसको हम देखते हैं पोल्यूशन से या अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ वो कितना इन लाइन है, तो वो भी इन प्रोजेक्ट्स में के इनिशिएशन में हम लोग देखते हैं. Now this is about the classification of investment, different investment project proposals. Let's look at the screening proposals and decision making कि आपका वो process, screening process जो है different proposals का और उसकी decision making कैसे होती है. The first thing is जो आपका section chief होता है, let's suppose किसी भी एक different sections है, उन different sections में से कोई भी different operating sections में से एक section जो है कहा ये जाता है कि यहाँ पे हमें एक new product चाहिए या market में new product चाहिए. अगर वो new product चाहिए या marketing and आपका जो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है किसी न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, उस सेक्शन का जो चीफ होगा वो पहले एनालाइज करेगा. वो अगर अप्रूव करता है तो दैट विल मूव टू योर प्लांट मैनेजर. प्लांट मैनेजर से चला जाएगा आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन. इस वक्त हम सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन से जिसने सारी ऑपरेटिंग करवानी है, फ्रॉम दैट इट विल मूव टू योर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी. अब वो ये देखती है कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी की कितना कैपिटल आएगा, कितनी इसके ऊपर कितनी एनालिसिस जरूरत है, कितना रिटर्न आएगा, ज्यादा काम आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी का. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी सी के द प्रपोजल इज वायबल एंड इट इज फिजिबल टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड द रिटर्न वी आर गोइंग टू गेट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो आप क्या करते हो कि आप मूव कर देते हो दैट टू योर प्रेसिडेंट. तो वो यहाँ आपका सीईओ जो है वो पार्ट ऑफ दैट कमेटी होता है, या सीईओ के पास जाता है, सीईओ के थ्रू वो प्रेसिडेंट के पास जाता है. प्रेसिडेंट इज नाउ गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट आइडिया और दैट प्रोजेक्ट इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं कि वेदर दे हैव टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट और नॉट. तो वो सारी कंडीशंस कंसिडर करने के बाद उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होता है. व्हेन इट गेट्स अप्रूव्ड देन यू मूव ऑन टू द योर नेक्स्ट स्टेप. सो एडवांस्ड टू योर नेक्स्ट लेवल that totally depend on the cost and strategic importance कि कितनी cost आएगी और इसकी strategic importance क्या है, कि whether we have to take this project or not, क्या वो strategically important है कि नहीं, क्या वो strategy के मुताबिक जो strategic objectives है उनके साथ in line है कि नहीं. तो जो चीज हम पहले बात करते कि strategic objectives consider करना बहुत जरूरी होता है, तो वो भी आपकी एक analysis का part हो जाता है. Now this is the screening process. Now let's move on to your project evaluation. We have different alternative methods. We have payback period, we have discounted payback period, we have net present value. We are going to cover these three techniques in this lecture, and we'll be moving on to internal rate of return, modified internal rate of return and profitability index in our next lecture. So let's look at the proposed project data. अब ये एक डाटा हम ले रहे हैं, एक प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं जिसको हम मूव ऑन करेंगे अपने आगे सब टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए. सो द फर्स्ट थिंग इज लेट्स लुक एट द बास्केट वॉन्डर एग्जांपल, जो कि हम बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट से ही कंसिडर करे जा रहे हैं. कि लेट्स सपोज इट्स सम मल्टीनेशनल कंपनी और उसके ऊपर हम अगर देखते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हो तो कैसे होगी. Now let's look at the question. Mariam is evaluating a new project for her firm, Basket Wonder. She has determined that the after-tax cash flows for the project will be. हमने ये forecast कर लिया है मरियम ने, और वो ये देखना चाह रही है कि आगे फोरकास्ट करने के बाद जो आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज है वो क्या क्या है. इट वुड बी 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ईच year for the next year, for the next 5 years. That means year 1 से लेके year 5 तक हमारे ये project cash flows होंगे. The initial cash outlay will be 40,000 rupees. That means this is your initial investment. This is the kind of investment you have to invest in your, you will be investing in your project. तो जो भी हमने एक new project लिया है for the firm, उसके initial investment is 40,000 rupees. Now this is very important to consider कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हो. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो सर्टेन प्रोजेक्ट की एग्जांपल हमने लिए फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेट्स अज्यूम दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ऑफ एनी अदर पोटेंशियल प्रोजेक्ट दैट बास्केट वंडर में अंडरटेक. कोई और प्रोजेक्ट भी वो अगर कंसिडर करते हैं तो ये प्रोजेक्ट उन सब प्रोजेक्ट से इंडिपेंडेंट है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इट इज अ प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन डज नॉट प्रिवेंट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी जो है एक प्रोजेक्ट भी कंसिडर कर रही है, दूसरा भी कंसिडर कर रही है और तीसरा भी कंसिडर कर रही है, इन तीनों प्रोजेक्ट्स जो है वो आपकी कमेटी के पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी के पास गया और वो ये कहती है कि अगर हम वो प्रोजेक्ट लेते हैं तो ये वाला प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, या अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो वो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ऐसा इस तरह का. लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है
कि इंडिपेंडेंट, ये टोटल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, कंपनी कोई और प्रोजेक्ट कंसिडर करे या ना करे, उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई उसका डिसीजन का इफेक्ट नहीं आएगा. दिस प्रोजेक्ट इज इंडिपेंडेंट एंड इट टोटली हैज इट ओन कैश फ्लोज, और इसकी टोटल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इसी के कैश फ्लोज के ऊपर डिपेंड करती है. देन वी हैव सम अदर प्रोजेक्ट रिलेशंस. वन इज योर डिपेंडेंट प्रोजेक्ट. डिपेंडेंट प्रोजेक्ट आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ वन और मोर अदर प्रोजेक्ट्स. नाउ लेट्स सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि वी हैव टू स्टार्ट सम न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है, जैसे हमने ये ऑयल फील्ड की एग्जांपल ली थी कि पेट्रोलियम कंपनीज हैं या ऑयल एंड गैस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो एक्सप्लोरेशन करती हैं. तो अब स्टार्ट तो ये है कि भाई ये प्लेस है और हमें न्यू जगह पे जाके एक स्टार्टअप लेना, हम न्यू प्लेस आइडेंटिफाई करनी है और उस प्लेस से हमें पेट्रोलियम, हमें ना अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है या अपने प्रोडक्ट को जरा इंप्रूव करना, हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हमें जरा ज्यादा चाहिए. दैट मींस वी नीड मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम. अब मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम का मतलब ये है कि हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जगहों से ऑलरेडी डिफरेंट हमारे प्लांट लगे हुए हैं, उनसे उनकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन हम इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है. अब डिमांड ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा हमें चाहिए, उसके लिए हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जी, हमें कहीं और से भी मिल जाए. अब कहीं और से भी मिल जाए तो उसकी एक्सेप्टेंस, उसके लिए क्या है कि जरूरी है कि एक्सप्लोरेशन की जाए. अब हमने ये प्रोजेक्ट तो एक्सेप्ट लेट्स सपोज करवा लिया कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है कि हमें न्यू क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम चाहिए. अब मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम के लिए एक और प्रोजेक्ट इनिशिएट करना पड़ेगा. दैट विल बी योर एक्सप्लोरेशन और रिसर्च प्रोडक्ट की कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम जाके अपनी पूरी रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें और उसके बाद एक्सप्लोरेशन करें कि क्या वेदर यहाँ से हमें पेट्रोलियम मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और हो सकता है हमें 2-3 जगहों पे जाना पड़े. अब ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेड है कि इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है कि हमारे एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हो जाए. तो इट्स द डिपेंडेंस कि ये प्रोजेक्ट की पेट्रोलियम क्वांटिटी ज्यादा में चाहिए है, इसकी एक्सेप्टेंस डिपेंड करेगी जब तक आपका एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं हो जाता. तो वंस योर एक्सेप्टेंस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड तो आप उसी को मूव फॉरवर्ड करोगे टू योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर मोर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोलियम. तो इसके लिए जरूरी है कि इट मीन्स कि बोथ द प्रोजेक्ट्स आर डिपेंडेंट. ये प्रोजेक्ट डिपेंड है एक्सप्लोरेशन के ऊपर कि जब तक एक्सप्लोरेशन वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा और कंटिन्यू नहीं होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, तब तक ये प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हो सकता. सो उसकी एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते. देन वी ऑल्सो हैव अनदर वन दैट इज योर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स whose acceptance prevent the acceptance of one or more alternative projects. For example, कंपनी के पास 2 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं कि 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए जा सकते हैं. एक प्रोडक्ट है जो विद इनोवेशन एंड एक प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है. अगर तो हम ये इम्प्रूवमेंट वाला प्रोडक्ट से कंसिडर करते हैं तो इस वक्त फॉर एग्जांपल मार्केट की कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर हम 1 एट अ टाइम ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो 1 एट अ टाइम ही न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. वरना अगर एक की इंट्रोडक्शन, एक की मार्केटिंग हो सकता है, दूसरी की मार्केटिंग, दूसरी की कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे की एक्सेप्टेंस को अफेक्ट करे. तो हम क्या करते हैं कि we take one product that is your product of let's suppose we consider one product जिसका जो कि हमारे न्यू एग्जिस्टिंग existing product को थोड़ा improve करना है. अगर हम ये improve करेंगे तो that means कि we are not going to introduce new product right away. इसका मतलब वो alternative product हमारा रिजेक्ट हो गया. तो if we accept this we reject that. और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम जी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, तो इसका मतलब है हमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इस वक्त रिन्यू करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज हाउ वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. एक एक्सेप्ट और दूसरा रिजेक्ट हो जाता है. Whenever we accept one project and it has its effect on the other project or alternative project, then we reject that project. तो इसको हम mutually exclusive projects कहते हैं. Now let's start with the payback period. Our different capital budgeting techniques. The first one is your payback period. Payback period is the period of time required for the cumulative expected cash flow from an investment project to equal the initial cash outlay. Cash outflow. That means कि for example if we have invested ₹100 suppose करते हैं, तो ये आपने year 0 पे invest किए. Coming up years में से let's suppose first year पे you got the initial cash flow of 50.
then you got the cash flow of 30, then you got the cash flow of 20, and then you got the cash flow of 30. अब 50 plus 30 is 80 plus 20 is 100. That means कि ये जो coming up 3 years हैं इसमें हमारी 100 की investment complete हो जाती है. So वो time period, ये जो 3 years हैं, ये वो time period है जिसमें हमारी original initial cash outflow जो था, जो हमारी investment थी, initial investment, वो complete हो जाती है. So हमें जब वो payback हो जाती है initial investment, उस time period को हम payback period कहते हैं, और we say the time period in which the project initial investment is back, or we can say is paid back. So this if you look at the timeline, it is starting from 0. At 0 we have minus 40k. That means we are investing 40,000 rupees in the project, और उसमें हमारी 10,000 एक की ईयर में, सेकेंड ईयर पे 12, थर्ड पे 15, 10 एंड 7 फॉर द नेक्स्ट 5 years. हमारे पास ये वही क्वेश्चन है जो कि हमने स्टार्ट में प्रोजेक्ट कंसिडर किया था अपने एनालिसिस के लिए. Now if you look at the payback analysis and you look at the timeline, तो टाइमलाइन पे अगर आप देखें तो 40k, that means उसी हमने क्या करना है, हमने cumulative cash flows फाइंड आउट करने हैं. So if we look at the formula of the, एक बार देख लेते हैं इसको. So we'll be looking at the process of finding out the payback period. The first thing is you must know what are the number of years. Then we'll be looking at the cash flow that is given in the question. Then we'll be looking at cumulative cash flow. We have 5 number of years for the project, कि project जो है वो 5 years का है. The first cash flow, that means कि year 0 जो हमने आज investment करनी है, that is rupees 40,000. Then we had 10,000 for year 1. Then we had 12,000 for year 2, 15,000 for year 3, 10,000 for year 4. This is 15, and then we have 7,000 for year 5. Cumulative cash flow का मतलब क्या होता है कि you cumulate, add from previous year और next year का, क्योंकि इस year तो first पे तो हमारे पास 40,000 ही आएगा कि हमारी ये initial investment है. इस initial investment और इसको जो है हम add कर देंगे अपनी initial investment, और अगले साल की investment को, अगले साल की cash flows को add करें तो minus 40,000 plus 10,000, the amount we get is minus 30,000. Now इस 30,000 और 12 को ऐड करें तो we will have 18,000. Now 18,000 and 15,000 को this would be minus 18,000 और 15,000 को ऐड करें तो we will have minus 3,000. Now when we add 10,000 into minus 3,000 we will have 7,000, and if we add this 7,000 into 7,000 it would be 14,000. So this is your cumulative cash flow. अब इसमें हमने सिलेक्शन किस तरीके से करनी है कि टाइम पीरियड हमें पता चले. वो ईयर जिससे आगे हमारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, उस ईयर को हम कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स कि वी आर कंसिडरिंग ईयर नंबर 3 जहां पे हमारी लास्ट नेगेटिव वैल्यू आई है, कि वी हैव minus 3,000 थर्ड ईयर पे, और फोर्थ ईयर पे हमारे पास 7,000 था. तो वो ईयर जिसपे पॉजिटिव वैल्यू आती है उससे पिछले वाले ईयर को हम कंसिडर, तो वो आखिरी लास्ट नेगेटिव ईयर जो है दैट विल बी कंसिडर. इसका फॉर्मूला अगर आप देखो दैट वुड बी n प्लस cumulative cash flow over cash flow. That means it is n is your year of negative cash flow. ये ओरिजिनल फॉर्मूला इस तरह नहीं है, मैं सिर्फ इसको आपके इजी करने के लिए बता रही हूँ. cumulative cash flow of selected year over cash flow of next year. So number of year of negative cash flow, year of last negative cash flow. So last negative cash flow कितना था, minus 3,000 cumulative cash flow. Year of last negative cumulative cash flow, तो जो last negative cumulative cash flow था that was minus 3,000, और कौन सा year था, third year. तो we'll be considering 3 plus अब क्या है, cumulative cash flow of selected year. हमने third year select किया, इसका cumulative cash flow कितना है, 3,000. देन ओवर कैश फ्लो ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो हमने सिलेक्टेड ईयर है उससे नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो कंसिडर करना है. दैट वाज, ये देखेंगे हमारा सिलेक्टेड ईयर है, इससे नेक्स्ट ईयर ये है, इसके 10,000 को हम कंसिडर करेंगे, इसके कैश फ्लो को हमने कंसिडर करना है.
So that will be equal to plus 0.3. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.3 years, क्योंकि हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो आंसर फॉर पे बैक पीरियड इज 3.3 years. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट ₹40,000 बैक इन 3.3 years. The initial investment of 40,000 will be back in 3.3 years. So अब इसको अगर आप देखें तो हमने क्या किया कि we found out the cash flows, then we found out the cumulative cash flows, that is by adding first and second cash flow. तो उन cash flows को ऐड करने के बाद हमने देखा है कि सबसे नेगेटिव वैल्यू, सबसे लास्ट नेगेटिव cumulative cash flows की वैल्यू क्या है. वो लास्ट नेगेटिव कैश फ्लो की वैल्यू इज एट ईयर 3. वो ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया, उस ईयर को कंसिडर करेंगे 3 प्लस उसमें हम कम्युलेटिव कैश फ्लो ऑफ सिलेक्टेड ईयर, जो सिलेक्टेड ईयर है उसका कम्युलेटिव कैश फ्लो ऐड करेंगे. अब सिलेक्टेड ईयर का कम्युलेटिव कैश फ्लो वो मतलब 3000 जो हमारी नेगेटिव वैल्यू थी ओवर कैश फ्लो ऑफ द नेक्स्ट ईयर. जो नेक्स्ट ईयर है दैट मींस हमने थर्ड कंसीडर किया था, इसे नेक्स्ट ईयर फोर्थ है, फोर्थ के ऊपर कैश फ्लो कितना था 10,000. कम्युलेटिव नहीं, कैश फ्लो, खाली कैश फ्लो, दैट वाज 10,000. देन वी फाउंड आउट दैट द वैल्यू इज 3.3 years फॉर द पे बैक पीरियड. Now let's move on to the acceptance criteria of payback period, that how do we accept or reject the project. The management of Basket Wonders has set a maximum of 3.5 years for project of this type. उन्होंने कहा है कि जी 3.5 years के अंदर इस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास 3.5 years के अंदर हमारे पास हमारा जो वैल्यू है उसको रिटर्न आ जाना चाहिए. जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी बैक. तो शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? Yes, the firm will receive back the initial cash outlay in less than 3.5 years. उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 3.5 years के अंदर हमारे पास कैश आउटफ्लो आ जाना चाहिए. लेकिन लेट्स सपोज अगर और अब जब हम अपना आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर है 3.3 years. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. लेट्स सपोज अगर ये होता 3.6 years, 7 years, 8 years, तो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. तो वो जो हम कंपनी की एक्सपेक्टेशन है, अगर उस एक्सपेक्टेशन के इक्वल या उसके एक्सपेक्टेशन से कम अगर वैल्यू आ जाती है तो यू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. अब एक चीज और कि अगर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है ना कितना प्रोजेक्ट है, 5 years का, तो 3.5 years के अंदर एटलीस्ट हमें अपनी इनिशियल आउटले तो मिले, देन वी कैन अर्न प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट 2 years. अब अगर देखें लेट्स सपोज कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आप 2-3 प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि पे बैक एंड डिस्काउंटेड पे बैक के डिसीजन हमेशा तभी बेटर हो सकता है जब आप ये देखते हो कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं. आपने एक अल्टरनेटिव उठाया, दूसरा अल्टरनेटिव उठाया, उन दोनों अल्टरनेटिव्स के आपने वैल्यू फाइंड आउट की है. फर्स्ट की जो वैल्यू आई है दैट इज 3.3 years. नेक्स्ट के अब एक और अल्टरनेटिव की सिलेक्ट करते हैं और वो शायद थी 3.8 years. तो 3.3 और 3.8 दैट मीन्स कि सेम इन्वेस्टमेंट है, 40,000 की इन्वेस्टमेंट हम दोनों में करेंगे. एक में 3.8 years, एक में 3.3 years है. दैट मीन्स कि एक में हमें कम टाइम पीरियड के अंदर जल्दी हमें कैश आउटफ्लो मिल जाएगा, दूसरे में हमें वी हैव टू वेट टिल 3.8 years, तब जाके हमें रिटर्न मिलेगा, तब जाके हम लोगों को अपना सर्टेन रिटर्न मिलना शुरू होगा. अभी तो हम सिर्फ इनिशियल आउटले कंप्लीट करेंगे. तो 3.3 years कम है, तो वो वैल्यू द लेसर द टाइम पीरियड ऑफ पे बैक पीरियड द बेटर इट इज टू सिलेक्ट. तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं जिसका टाइम पीरियड कम होता है. Payback period strengths and weaknesses. Let's look at the strengths and weaknesses of this payback period. The first thing is it is easy to use and understand. बहुत easy है कि आप just cumulative cash flow find out करो and then you look at the negative value और आपका number of years आपको पता चल जाता है कितने around about कितने number of years आएंगे. And then it can be used as a measure of liquidity कि कितना easy है to कितनी इसकी लिक्विडिटी मींस कि आपका कितना इजीली इट इज इजीली कन्वर्टेबल टू कैश. तो कितना टाइम पीरियड में आप अपना इनिशियल कैश लोगे, देन इट इज इजी टू सेल आउट दैट प्रोजेक्ट. आप प्रोजेक्ट किसी और को दे दो तो इसकी लिक्विडिटी मेजर करता है. देन इट इज इजी टू फोरकास्ट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज. जाहिर बात है क्योंकि हमारा इफ वी नो द कैश फ्लोज तो हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्युमुलेटिव कैश फ्लोज देख सकते हैं. देन वी कैन सी कि अच्छा फ्यूचर में अगर इतने टाइम पीरियड में इनिशियल कैश आउटफ्लो है तो इतनी ही अमाउंट नेक्स्ट कमिंग अप ईयर्स में होगी. इसकी वीकनेस में फर्स्ट थिंग इज इट डज नॉट काउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज की जो आज वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर में क्या होगी या उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. जो भी हमारे फ्यूचर फोरकास्टेड कैश फ्लोज आने हैं उनकी आज वैल्यू क्या है. जस्ट टेल यू अबाउट द टाइम पीरियड कि किसमें आपकी अमाउंट रिटर्न आ जाएगी, पर ये नहीं बताती कि उन फ्यूचर अमाउंट्स की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कि क्या वेदर इट इज वर्दी टू बी इन्वेस्टेड और नॉट. देन वी हैव इट डज नॉट कंसिडर द कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड. के एक पे बैक पीरियड हमने सेलेक्ट कर लिया जो एन हमने कंसिडर किया, एन इज योर पे बैक पीरियड.
वो पे बैक पीरियड जिसपे आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है, वो हमने सिलेक्ट कर लिया, उससे आगे के कैश फ्लोज को वो कंसिडर नहीं करता. देन वी हैव कट ऑफ द पीरियड इज सब्जेक्टिव, कि वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिविटी और लॉजिक बिहाइंड दिस कि हम क्यों ये नेगेटिव ईयर कंसिडर करते हैं. देयर इज नो लॉजिक, इट इज जस्ट कि आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज इसके आगे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका मतलब है कि नेगेटिव कैश फ्लोज यहाँ तक खत्म हो गए, ये ओरिजिनल अमाउंट आ गई. दैट्स इट. इसके सब्जेक्टिव कोई ये सब सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिविटी या सर्टन लॉजिक इसके बिहाइंड नहीं है. Now let's look at another technique, that is your discounted payback period. Discounted payback period is the period of time required for the cumulative cash flow, cumulative expected cash flow for an investment project to be equal to इनिशियल कैश आउटवे एट अ डिस्काउंट रेट. तो डिस्काउंट रेट के ऊपर जो भी आपके सर्टन कैश फ्लोज आते हैं उस डिस्काउंट रेट के ऊपर देन वी सी कि वो कितने इक्वल होते हैं आपके इनिशियल कैश आउटले से. देन द पीरियड इन विच द प्रोजेक्ट विल गेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, the project initial investment will be back at a discount rate. एक certain discount rate के ऊपर आपके initial investment वापस आएगी, तो this is your discounted payback period. Now let's look at the question जो हमारा already existing question है, उसी को consider करके आगे चलते हैं कि how we are going to find out the original value of discounted payback period. It has a similar way of finding the same process as we find out the payback period, except that we are going to consider the discounted cash flow. Now discounted cash flows and then discounted cumulative cash flow. Now another important thing is to consider is that we need to know the discount rate for this. तो discount rate इसमें अगर question में आप देखें तो शायद वहाँ पे consider किया गया था कि 13% आपका discount rate होगा. अगर नहीं भी था तो if let's suppose कर लेते फिलहाल कि the discount rate will be 13%. Now when we talk about this discount rate or the value of R, तो जब भी हम R या discount rate की बात करते हैं, this is your cost of capital. वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कंपनी की कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट हो तो उसके ऊपर रिटर्न कितना आएगा, तो वो इतने परसेंटेज रिटर्न आपको पता होता है. तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, you find out the cost of capital of that, आप उसकी cost of capital find out भी कर सकते हो if you have the values. और beside that what you can do is you can also use this cost of capital. अगर वो पहले से evaluate हुई हुई या given है तो आप उसको find out use कर सकते हो, otherwise you have to find out the cost of capital. और वही cost of हम capital use करते हैं this discounted payback period में. Now it has the similar process as we have for a payback period. That means we are going to find out the number of years, then we are going to find out the cash flows जो कि हमें already given है. फिर इन कैश फ्लोज के अंदर हम लोग फाइंड आउट ये करेंगे कि आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो कौन सा है. सो वी विल डिस्काउंट ऑल कैश फ्लोज ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एट अ सर्टेन डिस्काउंट रेट. डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ जाएंगे. डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बाद वी विल हैव क्युमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. दैट मींस क्युमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जो कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया है हम उनका क्युमुलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. Now number of years is 0 से start होके 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So the cash flow we have is minus 40,000, then we have 10,000, then we have 12,000 for second year, for third year it is 15,000, then we have 10,000 and then we have 7,000. Now discount cash flows find out कैसे होते हैं. You divide those cash flows by 1 plus R power T. This is formula for discounted cash flows. That means अब minus 40,000, ये तो चलें divided by 1 plus, अब इसमें the value of R is 13%, जो मैंने अभी initially बताई आपको, 1.13 power 0. क्योंकि किसी भी चीज की power 0, x power 0 is equals to 1. So 1.13 power 0 is equals to 1 हो जाएगा. The answer would be minus 40,000. So for the next year we have 10,000 rupees. 10,000 divided by 1.13 power 1. The answer is 8850. Then we do 12,000 into over 1.13 power 2. That is equals to 9396. Then we have 15,000 divided by 1.13 for the third year to power 3. The answer would be 10395. So 10395.
Then we have 10,000 divided by 1.13 power 4, that means it is 6130. And the last one we have is 7,000 divided by 1.13 power 5, that is equal to 3801. This is your discounted cumulative discounted cash flows. यार cash flow को आपने discount rate पे discount करके value find out किए. Then you find out cumulative cash flow, जैसे कि हमने payback period में किया था. First year का तो वैसे ही आ जाएगा. Second year का इसमें addition होगा, तो add करके we have 31150. We have minus 21754. We have 11359. We have minus 5229 and we have minus 1428. Now if you look at this thing कि 5 years के अंदर भी आपकी नेगेटिव वैल्यू खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें वहां से वैल्यू आगे चाहिए जहां से आपकी नेगेटिव वैल्यू खत्म होकर आगे पॉजिटिव वैल्यू हो. तो इफ यू डिस्काउंट द कैश फ्लोज तो आपकी नेगेटिव वैल्यू खत्म नहीं होती है. तो इस क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में लेट्स सपोज आप करते हैं और उसमें होता है कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है थर्ड ईयर के बाद. आप अगर थर्ड ईयर पे लेट्स सपोज कर लेते हैं, वैसे तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ. इट इज n प्लस डिस्काउंटेड क्युमुलेटिव कैश फ्लो ऑफ ईयर सेलेक्टेड whole over cumulative cash flow या discounted cash flow of next year. So this n is your number of period या selected payback, selected year discounted payback period. तो लेट्स सपोज कि क्योंकि इस क्वेश्चन में तो अगर हम देखें तो वी हैव ऑल द नेगेटिव वैल्यूज. क्वेश्चन यहाँ पे हम खत्म करते हैं कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड्स का नहीं निकल सकता. लेट्स सपोज इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू और हम कहते हैं कि कहीं थर्ड पे आके इसकी कोई वैल्यू आती है, तो हम थर्ड पे आके अगर इफ वी कंसीडर तो वी वुड से दीज आर ऑल अज्यूम्ड कैलकुलेशंस. So we say 3 point, let's say कोई वैल्यू है, तो discounted cumulative cash flow is 11359 over 10395. तो ये आपकी जो वैल्यूज हैं, इससे let's suppose आंसर आता है 3.4 years सपोज कर लिया जाता है. तो 3.4 years is your discounted payback period. discounted payback period तभी यूज किया जाता है जब आप अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करते हो कि वो किस तरीके से आपको ओरिजिनल वैल्यू देती है. So this discounted payback period is 3.4 years. Now let's look at the acceptance criteria of discounted payback period. The management of Basket Wanderers has set a maximum DPP, that is discounted payback period, of 3.5 years for a project of this type. Now should this project be accepted or not? Now हमें तो पता ये चला कि अगर हम देखें, हमने वो तो मैंने अजम्पशन कर दी कि अज्यूम करके देखा कि 3.4 इयर्स हम अज्यूम करके एक वैल्यू लिए. लेकिन वैसे अगर हम अपने डिस्काउंटेड क्युमुलेटिव कैश फ्लोज देखें तो वो सब नेगेटिव वैल्यूज हैं, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज. दैट मीन्स कि हम इस प्रोजेक्ट के पूरे टाइम पीरियड, दैट मीन्स 5 years का अगर प्रोजेक्ट हो तो इस 5 year के प्रोजेक्ट के अंदर अंदर भी हम अपना इनिशियल आउटले या इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं ले सकते इफ वी डिस्काउंट द वैल्यूज. तो वो हम अपने डिस्काउंटेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर डिस्काउंट करें तो हमारे पास इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही. तो हम ये जो डिस्काउंट भी इसीलिए करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द ओरिजिनल प्रेजेंट वैल्यू, काइंड ऑफ डू गिव अस हेल्प इन प्रेजेंट वैल्यू, बट वो हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं देता. ये भी इसका एक नेगेटिव या वीक पॉइंट है. तो हम इस फर्म को क्या करें, क्योंकि सारे नेगेटिव कैश फ्लोज हैं सारे के सारे, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके पॉजिटिव हो. दैट अगर नेगेटिव का मतलब क्या है कि अभी भी फर्म 5 साल के अंदर अंदर भी अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती. सो वी से दैट वी रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट बिकॉज द फर्म इज नॉट गेटिंग द इनिशियल आउटले इन प्रोजेक्ट लाइफ टाइम. So now let's look at another technique of capital budgeting, that is net present value. Now net present value is one of the very important technique, and most of the time it is being used. ऐसा ही होता है कि net present value और internal rate of return are the techniques जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं. और इसलिए क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपने ये देखते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज इतने हैं तो आज उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो मैं आज की वर्थ देखती हूँ उस फ्यूचर वैल्यू की. फ्यूचर में जो फोरकास्ट हम कर रहे हैं उनकी आज क्या प्रेजेंट वैल्यू, वेदर इट इज वर्थ टू बी इन्वेस्टेड और नॉट. तो प्रेजेंट मोस्ट कॉमन यूज्ड कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है वो ये हर प्रोजेक्ट में ये जरूर फाइंड आउट होती है. और बेशक टेक्निक्स यूज होना हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू जरूर होता है, एंड देन IRR भी. Net present value is the present value of an investment project net cash flows minus the project initial cash outflow. That means the net present value is equal to all cash flows summation cash flows
माइनस कैश आउटफ्लो, दैट मीन्स जो ओरिजिनल जितने भी कैश फ्लोज हैं उन सब की समेशन, उन सबको ऐड करके उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस करें तो वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आपकी ओरिजिनल में नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी. सो दिस इज अबाउट योर नेट प्रेजेंट वैल्यू. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फॉर द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड देन फाइंड आउट द सोल्यूशन. बास्केट वंडर्स हैज डिटरमिन्ड दैट द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 13%. लेट्स सपोज कि 13% जो हमने कंसिडर किया है, ये जो डिस्काउंट रेट है ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. या हमने बास्केट वंडर्स में भी जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट की थी दैट वाज अराउंड 10 पॉइंट समथिंग, तो वो आपकी 13% हम ये कंसिडर कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कैपिटल बजटिंग या डिस्काउंट रेट, कैपिटल या डिस्काउंट रेट इज 13%. सो लेट्स लुक एट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द सोल्यूशन. योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस कैश फ्लो फॉर द ईयर 0, जिसको माइनस ही कंसिडर करते हैं, प्लस cash flow for year 1 over 1 plus r power 1 plus cash flow for year 2 over 1 plus r power 2 plus so on up to cash flow for year n, जितने भी number of years का, n is your number of years of the project. So cash flow for initial year, that is your initial investment, CF naught is your initial investment, plus CF1 over 1 plus r power 1 is your cash flow for year 1, cash flow for year 2, cash flow for n नंबर ऑफ ईयर्स के जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट है. और जो हम जब r की बात करते हैं, r इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो अगर हम इस प्रोजेक्ट में कंसिडर करें तो माइनस 40,000 प्लस फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इज दिस इंटू 1.13 पावर 1 प्लस 12,000 इंटू 1.13 पावर 2 प्लस 15,000 ओवर 1.13 पावर 3 प्लस 10,000 over 1.13 power 4 plus 7,000 in over 1.13 power 5. If we calculate it through the calculator, at the end of the day हमारी जो value आएगी that is rupees minus 1428 rupees. So the net present value for all the cash flows for the basket wonder is 1,428. Now let's look at the acceptance criteria of net present value. The management of basket wonders has determined that the required rate of return is 13% for this project. Should the project be accepted or rejected? No, the net present value is negative. क्यों? क्योंकि हमारी net present value negative है. This means that the project is reducing the shareholder wealth. आपकी shareholder wealth को reduce करें, आज की present value ही negative है. So we reject as net present value is less than 0. So acceptance criteria to some extent इस तरह भी होता है कि if your net present value is positive, you accept. If net present value is negative, you reject. जब भी less than 0 होगी तो रिजेक्ट करोगे, ग्रेटर देन 0 होगी तो एक्सेप्ट करोगे. कि नेगेटिव वैल्यू तो रिजेक्ट, पॉजिटिव वैल्यू तो एक्सेप्ट. अगर आप किसी भी टू प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स को कंसिडर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव्स हैं, तो उनमें से द ग्रेटर एनपीवी इज कंसिडर्ड और सिलेक्टेड. तो जब भी दो प्रोजेक्ट होंगे उनमें से अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप उस प्रोजेक्ट को कंसिडर करोगे जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज्यादा है. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. फर्स्ट थिंग, इट्स कैश फ्लोज अज्यूम टू बी री इन्वेस्टेड एट द हर्डल रेट. वो जो हमने एक सर्टेन डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर जिसपे कंपनी की कोई भी हम कहते हैं कि ऑन एवरेज इतना रिटर्न आ रहा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके ऊपर हम री इन्वेस्ट करते हैं. तो कॉन्सेप्ट इज कि हम उसी पैसों को दोबारा री इन्वेस्ट करके उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि आज प्रेजेंट वैल्यू इतनी है तो हम इन्वेस्ट करें तो कितना अमाउंट आएगी. देन इट अकाउंट्स फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. डेफिनेटली इट डू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में फोरकास्ट करते हुए कैश फ्लोज ये थे तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. देन इट ऑल्सो कंसिडर ऑल द कैश फ्लोज. कोई कैश फ्लो को ये छोड़ता नहीं है, सारे प्रोजेक्ट के सारे कैश फ्लोज को लेता है, उनको डिस्काउंट करता है डिस्काउंट रेट के ऊपर एंड देन इट फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. Okay, one of the weakness is it may not include managerial options embedded in the project. We will be moving on to next chapter number certain other more chapters of chapter number 14 that is in your book of Eugene F. Brigham and Van Horn की book में भी chapter number 14 है जिसमें you will be finding out certain capital budgeting other capital budgeting decisions.
तो we'll be looking at this in the next chapter. तो आपके जो भी it may not include the managerial option. अब हो सकता है कि मैनेजर उसको परसेंटेज रिटर्न में देख रहा हो कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट पे परसेंटेज रिटर्न कितना, ये हमें एक एब्सोल्यूट आंसर देता है. सो जब भी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू रिजेक्ट हो गई है तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. या आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ साथ भी IRR फाइंड आउट किया जाता है इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में एब्सोल्यूट वैल्यू ओके फाइन आई एम गोइंग टू गेट इतनी सी आज प्रेजेंट वैल्यू, फाइन दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी आज वर्थ क्या है. लेकिन इसके साथ साथ अगर ये पता चल जाए कि क्या परसेंटेज रेट के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट हमें आएगी, इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना परसेंटेज रिटर्न आएगा, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है. सो दैट्स व्हाई वी फाउंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. Now let's have a brief summary of this lecture. We did find out the capital budgeting process. We do learn कि आपका capital budgeting होती क्या है. It is the process of identifying, analyzing and selecting the projects for consideration के वो आपको initial requirement, आपके original invested capital भी return करे. और फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ही आपकी कैपिटल बजटिंग यूज होती है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी. देन वी लुक एट द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, दैट मींस वो प्रोसेस कि आप कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट इनिशिएट करोगे, उसके बाद प्रोजेक्ट को का इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज या ऑपरेटिंग इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को फोरकास्ट करके एस्टिमेट करोगे, उनके बाद उसको एवेल्युएट करोगे. एवेल्युएट में आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आती है कि आप उनको एनालिसिस करते हो. एनालिसिस करने के बाद आप सेलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कि क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वेदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. एंड देन उसके बाद आप उसके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराते हो. इम्प्लीमेंट कराने के बाद उसके पोस्ट ऑडिट भी करते हो कि बाद में भी देखा जाता रहता है कि कितने टाइम पीरियड तक ये हमें किस तरीके से आ रहा है और कितना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है. देन वी फाउंड आउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल कि क्या प्रोजेक्ट्स, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कैपिटल बजटिंग एनालिसिस या कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के लिए यूज होते हैं. दे इंक्लूड योर न्यू प्रोडक्ट एक्सपेंशन, प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो, या न्यू ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो, या आपके और एक्सप्लोरेशन का हो. इस तरह के जितने प्रोडक्ट्स डिफरेंट किस्म के स्टार्ट होंगे, या न्यू स्टार्टअप कंपनी हो, या न्यू प्लांट लगाना हो, या थोड़ी एक्सपेंशन करनी हो बिजनेस की, ये दीज आर द एग्जांपल्स फॉर योर कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स. इसके बाद आपने ये भी देखा था कि क्या एक सर्टन स्क्रीनिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें सेक्शन हेड से लेके प्लांट मैनेजर एंड देन मूविंग ऑन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस टू योर चीफ कैपिटल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो कि ये देखती है कि एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कमेटी होती है जो ये देखती है कि कितना एक्सपेंडिचर है आएगा और किस तरह एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट. और देन इट मूव ऑन टू योर प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट दैट टू योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट वेदर द प्रोजेक्ट हैव टू बी सिलेक्टेड और नॉट. Then we took the example of basket wonders जिसमें हमने एक certain अपनी situation consider की एक certain project के लिए, और then we move on to different techniques उन पे apply करने के लिए. capital budgeting techniques में आपकी वैसे तो 6 techniques है. We have studied 3 techniques in this lecture that includes payback period, discounted payback period and net present value. Your payback period is the time period you will get the time period in which you are going to get your initial investment back. Then it does not take into account your time, value of money and few more things, so that's why we move to the discounted payback period. Discounted payback period में we discount each cash flows, then we find out that it's a cumulative cash flow, और उस cumulative cash flow, discounted cumulative cash flow में से फिर हम देखते हैं कि original वहाँ पे जहाँ पे आपकी value positive आ जाए, then we find out that whether your project is accepted or rejected, और कितने level पे हम लोग उसको accept या reject करेंगे. तो आपके अगर पॉजिटिव वैल्यूज हों और आपके ओरिजिनल एस्टिमेटेड टाइम पीरियड से कम हो तो वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट फॉर पेबैक एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, बट बोथ ऑफ देम डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट. सो वी मूव ऑन टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज योर लास्ट टेक्निक व्हिच वी स्टडीड इन दिस लेक्चर. नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, or we can say the difference between the future cash flows and your initial investment. That means हम ये देखते हैं कि future में forecasted इतने cash flows हैं, इनकी आज present value कितनी बनती है along with your initial investment, तो हम उसकी आज present value find out करते हैं. इसके लिए अगर हम उसको accept or reject, जो project हमने consider किया था, we rejected the project because the value was negative. When we have to accept the project, net present value is, if the net present value is greater than 0 or it is net present value is positive, then we say that it is your we accept the project. And if we say that the net present
present value is negative, we say NPV is less than 0, we say that the project is rejected. But if we say for two different projects के लिए अगर हमने select करनी है तो net present value जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी हम उसको कंसीडर करेंगे. बट फॉर पेबैक एंड डिस्काउंटेड पेबैक जिसके लिए पेबैक पीरियड या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कम होगा, दो तीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से जिसका पेबैक या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कम होगा, हम वो वाला पीरियड सेलेक्ट कर देते हैं. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर. वी विल बी मूविंग ऑन टू मोर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इन आवर लेक्चर नंबर 18. थैंक यू.